there. Welcome to our knowledge spot. This is Rebecca Adil. Students, we are doing chapter number 2 of class 9 Punjab textbook, and the chapter is real and complex numbers. Students, we have already done exercise number 2.1. We have to start now exercise number 2.2, but before we are going to start the exercise, we're going to go towards some properties and the laws of the exercise. It's very important. Let's start the exercise, not the exercise, but the rules of the exercise. Properties of real number. You better know what is a real number. Real number is the union of rational and irrational number, natural number, whole number, integers. All these numbers included in the real number means real number is the biggest set from all the rest of the set. Okay. Now the first property, that is closure property. Students, the name actually represents like close. It's a closure property. What is it? Check it. Students, firstly you should know what is this. This is the sign basically for all. इसको कहते हैं, जैसे ये उल्टा a आपको नजर आ रहा है, इसे कहते हैं for all. For all a b belongs to real number. You can take any number from the real number, and when you add these two numbers, when you add the two numbers, and after adding, what happens after adding? The number belongs to the set. Okay, like there is an example like minus 3 comma 6 belongs to real number. Of course we know that with these two numbers belonging to the set of real number. Now when we are going to add these numbers, minus 3 plus 6 is equal to 3. That is minus plus minus 6 minus 3 is 3. The biggest number sign, that is positive. Likhe ya na likhe, no problem. 3 belongs to real number and this is called a closure property. अब कैसे आपने इसको मजीद में थोड़ा सा एलैबोरेट कर देती हूँ कि आपने कोई से दो नंबर रियल नंबर सेट में से उठा लिए, ठीक है, आप उन सेट पे कोई ऑपरेशन लगा दिया और वो है पॉजिटिव का ऑपरेशन, आपने दोनों को ऐड कर दिया. जब आप उन्हें ऐड करते हैं, एडिशन के बाद जो आंसर आता है, अगर वो नंबर भी रियल नंबर के अंदर चला जाए, उसी सेट से बिलोंग करता है, क्योंकि रियल नंबर में 3 भी तो आता है, इसका मतलब है. और इस चीज का जो प्रॉपर्टी है, इट कॉल्स क्लोजर प्रॉपर्टी. नेक्स्ट देखें, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या है? Students, for all a b belongs to real number. Like you are having two numbers a comma b. It could be anything. अभी ये जनरल, ये सबसे पहले हम ए बी की बात क्यों करते हैं कि ये जनरल फॉर्म होती है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है. दिस इज नॉट एन एग्जांपल, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एनी प्रॉपर्टी. When you add like a plus b is equal to b plus a, it means check there's only two numbers. What we are doing, just changing their order. पहले a plus b है, फिर b plus a, but the sign is same. Like plus यहाँ पर भी है, plus यहाँ पर भी है, सिर्फ उनको order change हो रहा है, otherwise the number are same. Now see the example. Like 1 plus 2 is equal to 2 plus 1 and the answer is same. ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमने सिर्फ अब भी ए भी पहले एक जनरल बात थी, हमने आप कोई भी इसके अलावा कोई भी नंबर आप ले लें, व्हेन यू कीप दिस रिलेशन विद इन देम, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, और इस चीज को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट वी हैव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. व्हाट इज इट? Like firstly you have to take three numbers. In associative property we are having three numbers a comma b comma c belongs to r. रियल नंबर के सेट में से हमने 3 नंबर उठा लिए हैं, और ये फॉर ऑल का मतलब मैं फिर से बता देती हूँ कि कोई भी नंबर उठा लें, फॉर ऑल यानी कि कोई भी नंबर आप उठा सकते हैं सेट में से, तो ये प्रॉपर्टी उसको सेटिस्फाई करेगी, होल्ड करेगी यहाँ पर. लाइक व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी? a plus b plus c is equal to a plus b plus c. नाउ द ऑर्डर इज नॉट चेंज, लाइक द ऑर्डर ऑफ नंबर इज नॉट चेंज, ऑर्डर तरतीब को कहते हैं, बट द ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट इज चेंज. पहले ब्रैकेट स्टार्ट में आ गया, देन लास्ट के 2 नंबर्स के ऊपर आपने क्या लगा देनी है, ब्रैकेट आपने अप्लाई करनी है. नाउ ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी, एक जनरल फॉर्म थी, यू कैन से स्टैंडर्ड और इवन जनरल. नाउ देयर इज एन एग्जांपल लाइक 2 plus 3 plus 4 and 2 plus 3 plus 4. What is the change here? Just the orders bracket. Now 2 plus 3 5, 4 is as it is. Now 2 plus and then 3 plus 4 7, and when you add both of them the answer is same. That was associative property. Now this is additive identity. This is something very important identity we are having here. Now see, there exists a unique real number 0 called additive identity, such that
When you add like a plus 0 is equal to 0 plus a for all a belongs to R. That is 1 plus 0 is equal to 1 and 100 plus 0 is equal to 100. These are the examples. Now I'm going to explain the property basically. स्टूडेंट्स होता क्या है कि एडिटिव आइडेंटिटी द वर्ड लाइक आप इसे कैसे याद रखें, ये एड से निकला है और आइडेंटिटी का मतलब होता है, आपको पता है आइडेंटिटी लाइक एवरीवन हैव देयर ओन आइडेंटिटी, हर किसी की एक अपनी एक प्रॉपर एक अलग से शनाख्त होती है, एक आइडेंटिटी होती है. सिमिलरली यहाँ पर एक जीरो बहुत स्पेशल करेक्टर है यहाँ पर और जिसकी स्पेशलिटी ये है कि आप जीरो में कोई भी नंबर आप ऐड कर लें, आप पॉजिटिव 1 करें, आप नेगेटिव 1 करें, आप ए में 0 को प्लस करें, आप 10 को प्लस करें, 0 को 100 करें, 1000 करें, बट जीरो में कुछ भी ऐड करेंगे, इन रिटर्न यू आर नॉट गेटिंग जीरो बट यू आर गेटिंग द अदर नंबर दैट इज 1 और 100 and even a. Okay, that is called additive identity. If anybody asks you what is an additive identity, you can simply say 0 is the additive identity. ठीक है, 0 एक ऐसा नंबर है जिसमें आप किसी भी चीज को ऐड करते हैं तो वो जो दूसरा नंबर है वो आपके पास आंसर में आएगा. और ये जो फॉर ऑल है कि आप कोई भी नंबर उठा लें, कोई भी उठा लो, 0 में ऐड करें, द आंसर विल बी दैट नंबर, नॉट 0. तो ये 0 की ये खास प्रॉपर्टी है, तो इसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी. नाउ लाइक हियर जो ये 0 है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है. ओके स्टूडेंट, जैसे अभी हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी है, now we are going to discuss additive inverse. Now what is this additive inverse? For every a belongs to R, then there exists a के बाद आप देखें called this minus a is called additive inverse of a such that first I want to show the definition, then I'll explain it. This is a plus minus a is equal to 0. यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि minus a plus a is equal to 0. This is, you know, in it we are having the commutative property. We just change the order, like a को यहाँ लिखा है, इसको यहाँ कर दिया, फिर minus a को पहले लिख दिया और a को, इससे फर्क नहीं पड़ता, but answer will be 0. Now additive inverse of 5 is minus 5. I'm going to explain it further more for you. Okay. अब ये देखिए, आपने एक ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करे कि जब आप उसको ऐड करें तो आंसर 0 आए. सुनने में थोड़ी सी बात लाइक स्ट्रेंज लगती है, हाउ कुड इट पॉसिबल दैट वी आर एडिंग टू नंबर्स एंड वी आर गेटिंग 0 आंसर, बट देयर आर टू नंबर. हाउ, like if you are going to add 5 with minus 5, answer will be 0 because plus minus minus then they will be cancel out and answer will be 0. Now if you want to find like 1 का additive inverse क्या होगा, 1 को किस में ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा, 1 को हम ऐड करेंगे माइनस में, जैसे a को किस में ऐड करेंगे तो 0 आएगा, a को माइनस a में ऐड करेंगे we will get 0. Okay students, now what is additive inverse? Once again add है तो बेसिक जो ऑपरेशन है वो एडिशन का आएगा, यहाँ पर आपको ये जो मेन ऑपरेशन है दैट इज प्लस. फिर इनवर्स का मतलब है उसका जो ऑपोजिट है, उसका जो इनवर्स नंबर है, अगर 5 है तो माइनस 5 है. इफ आई एम गोइंग टू आस्क व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 5, इट विल बी इन रिटर्न 5. Student, this is a very important question respect to your MCQs because you are getting like 1.1 marks of your MCQs. आपको यहाँ पर MCQs के मार्क्स मिलते हैं, इसमें इसका ये क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है. This is very important. Don't be like you are not going to leave that exercise or leave that question because they're very small question and because ये प्रॉपर्टीज है, हमें ये करने की जरूरत नहीं है because आपके ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नेक्स्ट नाउ इसका देखिए दूसरी एग्जांपल है, a को प्लस करें माइनस a में देन वी आर गेटिंग 0. ओके स्टूडेंट्स, वो प्रॉपर्टीज थी हमारी एडिशन में, सारी जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज की रियल नंबर की वो उसमें एडिशन के साइन आते हैं कि एडिशन के लिहाज से आप जो प्रॉपर्टीज करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन आर एज फॉलोज. अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से प्रॉपर्टीज आर द सेम बट द ऑपरेशन इज डिफरेंट हियर. पहले सारे पॉजिटिव थे, अब सारे मल्टीप्लाई होंगे. नाउ द क्लोजर प्रॉपर्टी आपको याद होगा, वी आर हैविंग टू नंबर, लाइक अगर आप फॉर ऑल ab बिलोंग्स टू, आप फॉर ऑल द नंबर बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर, when we are going to multiply these numbers, then the after multiplication the answer is also it should belong to the set of real number. That is, like if minus 4 comma 6 belongs to real number, of course these are the two number, they are definitely belongs to the real number. Now when you multiply these two number, what will happen, it will be minus 24 and it still belongs to the set of real number, and that is closed, like closure property. Now the commutative property with respect to multiplication. For all ab belongs to real number, we know what is the commutative property in addition, like a plus b is equal to b plus a. Similarly, we are going to write ab is equal to ba. You know that if there is no operation between two letters, like they are written together, there is no
लाइक कोई साइन आपको नजर नहीं आ रहा है इन दोनों के दरम्यान में जो हमेशा मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, तो इसे कहते हैं आपने सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है नंबर्स का। पहले क्या था a प्लस बी और b प्लस है, राइट नाउ a b इज इक्वल टू b a, like 1 by 2 comma 5 by 6 belongs to real number, then if you are going to multiply like 1 by 2 5 by 6 is equal to 5 by 6 1 by 2, answer is same. Okay, so that was commutative property with respect to multiplication. Now associative property as we have done early, जिसमें हमने एडिशन के लिहाज से की थी, now we are going to do it with multiplication. Like ABC, there are three numbers because associative में three numbers आप इस्तेमाल करते हैं और belongs to real number. Then this is the property ABC. ABC आपको पता है कि associative में we are just going to change the order of bracket, not the order of numbers. Like that was the general form. Now the example: 2, 3, 5 belongs to real number. Then 2, 3, 5 and 2, 3, 5. The order of the number is as it is, just the order of the bracket is changed. Now 2 3s are 6, 5 is as it is equal to 2, then 3 5s are 15, and then answer is same. That is called, students, we can also call them law. These are the laws and also properties. We can say like associative law, yeah, commutative law. Rather than if you don't want to say property, you can say it law. Next, that is multiplicative property. There exists a unique real number. It's not like a multiplicative property, but it's a multiplicative identity. Okay, there exists a unique real number 1 called multiplicative identity such that, okay, a dot 1 is equal to a or 1 dot a is equal to a for all a belongs to real number. Okay, first I want to show, okay, students, the way we have done additive identity, similarly there is multiplicative identity. Just think about that. Like we have done, हमारे पास additive identity क्या थी? You need a number, when you add in that number something, तो वो जीरो नहीं आना चाहिए। The zero हमारे पास additive identity थी, और जब हमने उसमें कोई नंबर ऐड करते थे तो जैसे 1 plus 0 1, 100 plus 0 100. Now क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही, एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करें कि जब उसे हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर ये आना चाहिए, नॉट 1. ओके, लाइक 5 ones are 5, 100 ones are 1. लाइक ऐसा कौन सा नंबर एग्जिस्ट करता है कि जब उसे आप किसी 1 से मल्टीप्लाई, लाइक 100 को किसी नंबर से 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 100 आए। तो अब ये मल्टीप्लाई, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी 0 थी, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या है? दैट इज 1. ओके, for all a belongs to, like for all the numbers belonging to the set of real number, the property will hold here. Now the next, students, now we are going to do, this is the property that is multiplicative inverse. What is it थी? वो थी हमारे पास additive inverse, और ये है multiplicative inverse. दोनों को थोड़ा सा कंपैरिजन करके करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा. Anyhow, for every non-zero real number, first of all this is non-zero. Non-zero का मतलब है कि जो नंबर जीरो नहीं है, rest of the number like 1 2 3, it could be anything. Real numbers, there exists a unique real number a power -1, और इसको हम 1 by a भी लिखते हैं, called multiplicative inverse of a. How? Like such that if you're going to multiply 5 with 1 by 5 or 1 by 5 into 5, answer will be 1. यानी कि इससे फर्क नहीं पड़ा कि इसको पहले लिखा है या पहले 5 लिखा है फिर 1 by 5 है फिर 1 by 5 into 5 है, लेकिन इसका इन रिटर्न आंसर क्या आना चाहिए? 1. दो ऐसे नंबर फाइंड आउट करें कि जब आप उनको मल्टीप्लाई करें आंसर 1 आना चाहिए. There is an exceptional case that 1 into 1 is equal to 1, but there must be many other cases when you are going to multiply the two number and answer is 1. How? The 1 is in front of you, that is 5 into 1 by 5 is equal to 1. It means that multiplicative inverse of 5 is 1 by 5. Students, ये आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा कि आपने MCQs में यूं पूछा होगा कि आप बताएं कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो सिंपली आप लिख देंगे 1 by 5. अब नेक्स्ट इसकी एक और एग्जांपल देखिए. What is the multiplicative inverse of -2? Like -2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास पॉजिटिव 1 आना चाहिए. एक one thing keep in your mind that it should be positive 1, not negative. Like अगर -2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आप फर्स्ट करें, आप सिंपली 2 लिख देते हैं, तो आंसर आपका पास नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस तो माइनस होगा. तो अगर यहाँ नेगेटिव लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी -2 ही होना चाहिए.
तो हम कहेंगे कि -2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है दैट इज 1 by -2. This way, multiplicative inverse of -2 is -1 by 2 or 1 by -2. ओके स्टूडेंट्स, ये है सारी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि दो ऐसे नंबर फाइंड आउट करें कि जब उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर शुड बी 1. फिर से देखें, फॉर एवरी नॉन जीरो रियल नंबर देयर एग्जिस्ट ए यूनिक रियल नंबर a पावर -1 और 1 बाय a और कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a. अगर देखें ये a है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 1 बाय a. नेक्स्ट देखें. Now, distributive property of multiplication over addition and subtraction. This is also very useful and easy property. Now, students, there are three numbers. Again, we are having A, B, C belongs to real number for all. यहाँ पर इसका फेस कैसा होता है, इसकी लुक्स कैसी हैं, वो ये है कि A है इंटू, यहाँ पर आप ब्रैकेट लगाएंगे और B प्लस C इज इक्वल टू 1. पहले जो है A B से मल्टीप्लाई होगा, प्लस इज एज इट इज, देन A इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद C. और यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर और इसके दरमियान देयर इज नो ऑपरेशन, डेफिनेटली देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन साइन, दैट इज इनविजिबल मल्टीप्लिकेशन साइन. ओके, नाउ एग्जांपल देखिए. अब इसमें ऑर्डर क्या है, यहाँ पर सिर्फ लिखते हैं 2 5 6. पहले 2 जो 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये जो भी मेन ऑपरेशन है वो यहाँ पर आपका आएगा, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ. नाउ 5 प्लस 6 11, 5 2s are 10 and 6 2s are 12, then this is 22 is equal to 20. तो ये आपके पास क्या प्रॉपर्टी है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, कैसे याद रखेंगे, ऑफ मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है ओवर एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन में भी होती है, वो भी देखिए कि सब्ट्रैक्शन का क्या है, क्योंकि यहाँ दो साइन है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ये सेकेंड इसका पार्ट है, जैसे जब माइनस आता है तो सेम प्रॉपर्टी है, बट ये कि यहाँ पर हमेशा मल्टीप्लिकेशन रहता है, बट यहाँ पर एक दफा पॉजिटिव के साथ ही दूसरी दफा आपके साथ नेगेटिव के साथ भी इसको हम लिख सकते हैं. The 2 is going to multiply with 6, then minus 2 is multiplying with 5. Then 6 5 1, 2 6 are 12 and 2 5s are 10, and after that, so this is your property. Okay students? Okay, these are the properties of equality of real number. ज़रा equality के साथ हम करेंगे. Number 1 जो property है, that is reflexive property. As the name represent, whenever you're going to see in the mirror, of course you're looking your own. ठीक है, अब वो कैसे कि अब a इज इक्वल टू a बराबर है a के फॉर ऑल रियल नंबर्स, a बिलोंग्स टू r, या दैट इज 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3. ये हमें पता है कि 1 1 के इक्वल है, फिर 2 2 के इक्वल है. तो ये हम ऐसे नहीं कह देते, इस चीज का एक स्पेसिफिक नाम है, इसका प्रॉपर्टी है, एक लॉ है, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी. नाउ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी. इफ a इज इक्वल टू b, देन b इज इक्वल टू a. स्टूडेंट्स, ये हमने बहुत बार किया है. लेट्स सपोज करें अगर हम कहते हैं कि x इज इक्वल टू, या जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम लिखते हैं 10 इज इक्वल टू x, तो हम क्या कहते हैं कि x 10 इज इक्वल टू x को हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 10 बिकॉज दे आर इक्वल. देयर इज अ वेरी स्पेशल साइन बिटवीन देम, दैट इज इक्वल. अगर ये b के इक्वल है, इट मींस वी कैन राइट इट b इज इक्वल टू a. एग्जांपल, if 2 is equal to 3, then 3 is equal to 2 for all real numbers. You can take any real number, whatever. Now the next, transitive property. What is transitive property? Transitive नाम से ही आपको पता चलेगा वो तीन चीजें हैं. TRA जब भी आपको ट्राई होता है, ये three things are here. Like if A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to C. अब इसको देखिए, इसका कहना ये क्या चाह रहा है कि अगर फर्स्ट करें एग्जाम्पल के साथ, देखिए अगर 1 बराबर है 2 के और 2 बराबर है 3 के, तो इन दोनों को मिला के, इन दोनों रिलेशंस को मिला के हम ये बोलेंगे कि 1 बराबर है 3 के. कैसे? ये देखिए, अब 1 किसके इक्वल है? 2 के, फिर 2 किसके इक्वल आ गए? 3. यानी कि ऐसा कौन सा दोनों रिलेशन में सेम चीज है? ये 1 जो है 2 के इक्वल भी है और फिर 3 2 के इक्वल है. 2 2 बिल्कुल सेम है. इट मीन्स कि 1 इज इक्वल टू 3 है. ये एक रिलेशन है, इससे नई चीज ये हम डिड्यूस कर रहे हैं, इम्प्लाइज कर रहे हैं. ठीक है, ये इसकी फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास. स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. मैं आपको फिर ये बताऊंगी कि ऑल द प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. हम किसी को भी लेस और ग्रेटर का साइन वो नहीं दे सकते. एवरीथिंग हैव देयर ओन इंपॉर्टेंस. नाउ नेक्स्ट, दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स. वी आर हैविंग 5 inequalities. This is the word firstly, trichotomy property. There are two numbers, a comma b belongs to real number. Then a is less than b
or A is equal to B or A is greater than B. एग्जाम्पल देखें, 1 is less than 2 और 1 is equal to 2 और 1 is greater than 2. स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 रिलेशन आपको नजर आ रहे हैं, बट वन टाइम ओनली वन रिलेशन कैन बी होल्ड. लाइक आप कह सकते हैं कि 1 लेस है 2 से, या 1 is equal to 2 और 1 is greater than 2. You have to be like the word that you emphasize, it's or, it's not and, it's or. कि एक वक्त में सिर्फ एक रिलेशन होल्ड करेगा और यहाँ पर जो रिलेशन होल्ड करता है दैट इज 1 is less than 2. नेक्स्ट, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अगेन 3 रिलेशन होल्ड करेंगे, क्योंकि टी आर से आप ये अपने माइंड में सेट करें इसको. A, B, C belongs to real number. Then A is less than B and B is less than C. We are going to combine these two relation and having then A is less than C. इसको कैसे याद रखेंगे कि आपके पास जो सेम लेटर आपको नंबर नजर आ रहा है उसको स्किप कर दें तो A is less than C. बट इसको यूँ याद ना भी रखें तो एग्जाम्पल देखें. You are not going to use the trick, but there is the reality of the property that 1 is less than 2 and 2 is less than 3. Then आपके पास क्या है, 1 is less than 2. अगर 1 छोटा है 2 से और 2 छोटा है 3 से, इसका मतलब है कि 1 is less than 3. ये इसको आप कह देते हैं, या ये जो 2 है इसको स्किप कर दें और आपके पास लास्ट और फर्स्ट वर्ड आएगा. सिमिलरली इसकी जो नेक्स्ट एग्जांपल देखें, A is greater than B and B is greater than C. It means then इनको मिला के कंबाइन करेंगे, A is greater than C. एग्जाम्पल that is 3 greater than 2 है and 2 is greater than 1 means 3 is greater than 1. This is the example. 2 को skip कर दें. एग्जाम में आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा जैसे कि फर्स्ट करें ये लाइन आपको दे दी है और आपसे पूछा जाएगा इससे क्या चीज बनती है, इसकी नेक्स्ट लाइन, क्योंकि 3 is greater than 1. Students, I think so that the properties are clear to you. Still, if you have some issues, any queries, you can ask me. अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में. The next video is the exercise, that is exercise number 2.2. Till then, take care. Bye bye.